नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और बच्चे मुझे बताते हैं कि आजकल बहुत प्रचलित है स्वयं को स्वीकार करना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बॉलीवुड हो। There is this whole movement where we are told we must accept who we are and everybody around us must accept us the way we are, and it's a matter of pride that there is self-acceptance. And I agree. मैं इस बात को मानता हूँ, हमें खुद को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए and we should really be proud of who we are. पर सबसे पहले ये सवाल उठना चाहिए even before self-acceptance. The question we should ask ourselves even before we say to ourselves that I accept myself. The question is, who am I? क्या मुझे पता है मैं कौन हूं? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैं शरीर हूं तो मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाएगी। फिर अगर मैं थोड़ा if I am Rubenesque, then everybody should accept that this is the way I am, this is body positivity, and all my acceptance is limited to just the form of my body, which is a bit interesting because the body is temporary and the body is constantly changing, and eventually the body will become dust. What happens to my self-image and self-acceptance then? The question still remains, who am I? अगर मुझे ये बात पता ही नहीं तो फिर मुझे लगेगा मैं मेरा काम हूँ, और फिर मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस ये होगी कि जो भी मेरा काम है मैं अपने काम में प्राइड लूँ। और समस्या यही है कि काम भी बहुत डायनेमिक होता है। एक समय के बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं कौन हूँ, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। I want you to understand, even before self-acceptance comes, self-awareness. If there is self-awareness, there is going to be true, meaningful self-acceptance. And if there is going to be self-awareness, there is a possibility of great evolution. अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बदलना है, हमें बदलना चाहिए, we must change everything around us. No, मैं बात कर रहा हूँ आपकी खुद की, और मैं बात कर रहा हूँ our ability to evolve. There is a great difference between changing and evolving. I can change my clothes, I can change my environment, I can change my language. But evolution is something deeper, personal. Evolution is a transformation, a metamorphosis. और समस्या तब आती है जब लोग सेल्फ अवेयरनेस पे ज़्यादा जोर नहीं डालते और सिर्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस पे डालते। और अगर बिना अवेयरनेस के सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, then change is going to be very difficult. In fact, sometimes it is going to be impossible. मैं चाहता हूं कि आप समझो, change is possible, evolution is possible. And I'm going to give you an example, और जो मैं आपको उदाहरण दूंगा वो कहीं दूर के नहीं दूंगा, अपने ही घर के दूंगा। मेरे गुरु, मेरे पिता परम सिद्ध अवधूत शिवानंद। And I want to share with you the first memories that I have of him. Babaji was a very different person जब मैं बहुत छोटा था। Imagine an introvert, कम से कम शब्दों में बात करना, एक व्यक्ति जो ज़्यादा अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज इंडियन मैन, एक व्यक्ति जो कलाओं पे ज़्यादा जोर नहीं देता। और मुझे याद है जब बाबा जी तप करते थे
और एक दिन समय आया जब उन्होंने मेरी माँ को कहा कि देखो मैं अब तप करने जा रहा हूँ, और वो हिमालय चले गए और उन्होंने गहरी तपस्या की कई महीनों तक। और फिर जब वो वापस आए, he wasn't the same human being. From an introvert, he had become an extrovert. He had become the Babaji you and I know and love. अब बाबाजी एक्सप्रेसिव हो गए, इमोशनल हो गए, दिल खुल गया, बातें करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ सबसे कीमती, सर्वगुण संपन्न, मानो सारी कलाएं उनके भीतर आ गई। उनके भजन, उनकी बातचीत, उनकी नॉलेज, उनका विस्डम. It is as if somewhere inside him he had all these qualities, and suddenly they all manifested through the process of sadhana. अब अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करोगे, वो बहुत चिंतन में लग जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उम्र के बाद, आफ्टर अ सर्टेन एज, just through the sadhanas, a person gets so many amazing and awesome qualities inside him. Qualities like music, qualities like wisdom, qualities like expression, qualities for which someone didn't train for. They will not have an explanation. Because sometimes, if you just look at the mind superficially, you will not understand. You will be limited to what you know. You will go into a state of paralysis by analysis. The mind is something very powerful, very beautiful. It is cosmic. It is filled with secrets and wisdom that a young science that is just a few decades old, how can it fathom? How can it understand? They are trying, and eventually, very soon, one day, maybe, the gap between what our ancestors explained and to what science knows, maybe one day the gap will lessen. But today, all we can do is be in awe of the amazing, beautiful, transformational changes that come through sadhana. So if you ask me the question, do people change? Of course, definitely. How much do people change? Completely, totally. As if they are a new human being. The father I was born to and the father that I was blessed with later on in life, ज़मीन आसमान का फर्क है. और साधना से ये बदलाव उत्पन्न किया जा सकता है. मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं that if you are living in a state of anxiety, if you are an introvert, और तुम्हें पता नहीं कि 5 लोगों से बातें कैसे करनी है, और तुम घबरा के डर के अपने जीवन को जीते हो, और हर किताब जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें बताया जा रहा है कि देखो इन 4 उपाय से तुम अपने जीवन को जी लो, मानो कि उस किताब में लिखा है, हाँ तो ठीक है तुम लंगड़े हो, ये लो बैसाखी, और जितना कुछ भी रेंग सकते हो रेंग लेना. I am just telling you that is not the only reality. There are grander, phenomenal possibilities waiting to those who are ready to awaken them. You can awaken the power within. और मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात है. ठीक है, अगर तुम्हें उस चीज में खुशी मिलती है, बहुत बढ़िया. समस्या तब आती है
when you are not in peace with the hand that you are dealt with, when there is a longing inside you कि अब मुझे अपने भीतर एक गहरा खूबसूरत बदलाव लेकर के आना है, और एंजाइटी कब आती है? जब मेरे भीतर से एक आवाज आ रही है कि मैं अब बदलना चाहता हूं, I don't want to live the same life. I want a deep, beautiful, powerful change. एंजाइटी कब आती है? जब मैं कोई अच्छी पिक्चर देखने जाता हूं, 83 या कोई अच्छी मूवी आपने बॉलीवुड की देखी और आपने देखा कि उसमें कपिल देव ने कितना बढ़िया काम किया था वर्ल्ड कप के दौरान, और आप सोचते हो कितना अच्छा होता कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाता, कितना अच्छा होता that I have the power to seize the moment, to awaken and change my own destiny. And that is when हम अपने जीवन को देखते हैं, ऊपर आसमान में भगवान को देखते हैं और कहते हैं कि काश हमें भी कुछ और ताकतें होती, हमारे भीतर भी थोड़ी और करेज होती, तो शायद हम अपना और अपने प्रियजनों के जीवन को बदल देते। लेकिन फिर हम अपने आप को आईने में देखते हैं और हम देखते हैं जीवन में इतनी चिंताएं और हम तो दुख के पुतले हैं, शायद इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ हमारी सोच गलत है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को बदलते देखा है। मैंने अपने जीवन में लोगों को अपनी खूबियों को जागृत करते देखा है। And the first person that I saw change completely, totally, phenomenally was my own father, my Guru. And through his transformation, I got motivated. और मेरी मोटिवेशन आई मेरे जीवन में जब मैं एक बहुत डार्क प्लेस पे था। और मेरा डार्क प्लेस था जब मेरे को एक मार्शल आर्ट्स की इंजरी हुई और मेरी पीठ पे एक गहरी चोट लगी और मैं चल नहीं पाता था। और तब बहुत आसान था to accept myself the way I am, अपाहिज। बहुत आसान था to just let go, to love myself. But I didn't want to be in that moment. I didn't want to accept myself in that way. There was something inside me. There was this calling of my ancestors. You know that. When you don't want to be in that darkness anymore. सबके भीतर ये नहीं होता, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर था कि मुझे ऐसे अपने जीवन को नहीं जीना, मैं बिस्तर पे नहीं पड़ा रह सकता। And before I accept myself, I must know who I am. There must be self-awareness. और अगर मेरे गुरु ने कहा है कि साधना के माध्यम से मैं अपने भीतर के भगवान को जागृत कर सकता हूं, then so be it. I will do it. So the only acceptance that I did was I accepted my guru's word. And I believed in the change. I believed in the transformation. I believed in the evolution. और मैंने बहुत मेहनत की। और मजे की बात, अपनी चोट लगने से पहले मैं एक एवरेज एथलीट था। I was an average human being. पर चोट लगने के बाद साधना के माध्यम से मेरी विल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई that I wasn't happy being average. I wanted to be the best. शायद क्योंकि जब कुछ खो देते हो तो उसकी वैल्यू रियलाइज होती है। और जब मेरी हेल्थ गई then I wanted to be the best. And that is what I want to remind all of you. आप सब जो मुझे सुन रहे हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो होंगे और कुछ चीज़ों के सामने हो सकता है आपने हार मान ली हो या फिर उनको स्वीकार लिया हो कि जी ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होगा। जब हम हताश हो जाते हैं और हमें लगता है कि ऐसा ही होगा, तब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में एक सिद्ध का आवाहन करें जो हमें सिखाए कि हाँ ठीक है अभी ऐसा है, लेकिन तुम्हारे भीतर शक्ति है, क्षमता है इस सिचुएशन को बदलने की।
And I want to remind you, wherever you are, whoever you are, you have the power, the strength. All you need to do is awaken it, manifest it. जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम्हारे भीतर है. मेरे साथ 2 महीना तुम जम के मेहनत करो, सेल्फ अवेयरनेस पर, खुद को जानने पर, अपने मन को समझने के लिए 2 महीना तुम मेहनत करो टू नो योर सेल्फ. एंड वंस यू नो योर सेल्फ, फिर तुम ठीक है अपने आप को एक्सेप्ट कर ले. बट अगर खुद को पहचानोगे नहीं तो फिर लोग बोलेंगे ओ एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. तो they'll say accept if you are lazy, then that is who you are. Accept your laziness. If you are sick, accept who you are. Let there be self-love. That will not bring mental health. Because how will you silence that voice inside you, that voice which is a gift from God telling you to make things better? That voice is a gift because that voice that seeks, longs for evolution is the reason why ordinary men become great. It is the reason why some men stand up to tyranny. It is the reason why some men say no in face of disease, that this is not how we envision humanity. Things must be better. We will make medicine, we will make science, we will make vaccine, we will make technology. Because we can't accept the negativity. Because we believe शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, भगवान से बढ़ के, मेरे भगवान से बढ़ के, महादेव से बढ़ के इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है. और अगर मैं उनसे जुड़ना सीख जाता हूँ, उनको समझ लेता हूँ, अपने आप को समझ लेता हूँ, तो मेरे सामने कोई एक ऐसी दीवार नहीं, कोई एक ऐसी रुकावट नहीं, कोई एक ऐसी समस्या नहीं जिसको छोड़ के मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकूं. इसलिए हे प्रिय, जिस किसी ने भी कहा है एक्सेप्ट योरसेल्फ, उसने अधूरा कहा है. इट शुड बी नो योरसेल्फ देन एक्सेप्ट योरसेल्फ. एंड दैट्स व्हाई टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, टू ऑल द पीपल हु हैव दिस voice inside them that wants a better life for themselves and their family. And not, again I'll say, not all of humanity has this. Some people do. It is a gift. They should embrace this gift. They should embrace this gift, and they should take the tools that our ancestors have blessed us with and walk the path of the immortals. जनवरी और फरवरी हमारे लिए बहुत कीमती महीने होने वाले हैं. 2022 हमारे लिए बहुत कीमती साल होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं, भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया, आपको एक शरीर दिया, आपको ये जीवन दिया. और इस शिवरात्रि में, 2022 की शिवरात्रि में, हमें अपने आप से पूछना है, व्हाट इज द गिफ्ट वी कैन गिव टू गॉड? The gift that you can give to God is become the best human being that you can be. Make use of your life. Create good health, physical and mental. Create good relationships with your family. But most of all, create peace, love, gratitude, happiness in your mind. And when you reach that state of perfection, then शिवरात्रि वाले दिन 2022 में जब हम महादेव का आवाहन करेंगे, तब सही मायने में you can utilize that time to be grateful to God and then seek His blessings, take His blessings to help everybody under the blue sky, help His creation. How can you thank God? By serving His creation. हम भगवान का, सिद्धों का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? इस सृष्टि की सहायता करके, मनुष्य की सहायता करके. और मनुष्य की सहायता केवल तभी हो सकती है
जब हम पहले खुद की करें. God help those who first help themselves. If you first help yourself, you will have the tools and means to help everybody that is around you. So remember this, simple. Self-acceptance comes later. First comes self-awareness. Yes, acceptance leads to mental health. I completely, totally agree. But acceptance of what? If you don't know who you are. I accept my body. I accept my body. Sure, you accept your body, but कल फिर तुम बुढ़े हो जाओगे, फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी, फिर प्लास्टिक सर्जन के पास जाओगे कि जी पहले जैसा बना दो, और फिर वो तुम्हारी शक्ल का नाश मार देगा, और फिर तुम बोलोगे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, जो मैंने अपना शैतानी चेहरा बना दिया है. Isn't that counterproductive? Acceptance brings mental health if first there is awareness. Awareness of my capabilities, my potential, myself. If there is awareness of my objective. मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ? मैं इस देश में क्यों हूँ? मैं इस घर में क्यों हूँ? मैं इस परिवार के साथ क्यों हूँ? जब अवेयरनेस होगी तब गहरी और ताकतवर एक्सेप्टेंस होगी, और तब मेंटल हेल्थ होगी. सो लेट अस डेडिकेट द जनवरी एंड फरवरी ऑफ द न्यू ईयर 2022 टू आवर मेंटल हेल्थ. अगर पिछले कई दशकों से हम अपने मन को अब्यूज कर रहे हैं, और हमने अपने मन को शरीर से तो कई गुना ज्यादा अब्यूज किया. आई थिंक 2 महीना 60 दिन से कम तो हम लगा ही सकते हैं अपने मन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. और देखो, एक बात तो पक्की है, सब कुछ तुम्हारा भाव है. भक्ति भाव से आती है, प्रेम भाव से आता है, खुशी भाव से आती है. और अगर मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, शांत होगा, तो भाव भी अच्छा होगा. और अगर मन में कचरा भरा है तो तुम कितने भी पोथे पढ़ लो, कितने भी स्पिरिचुअल चैनल्स देख लो, कितने भी गुरुओं को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, कोई फायदा नहीं. अगर मन अंधा है तो हम शिशुपाल के समान कृष्ण के सामने खड़े होकर भी कुछ नहीं समझ सकते. फिर हम अंधकासुर हैं, महादेव से जन्मे, महादेव के सामने महादेव से अनजान. लिखने वाले ने भी सोच समझ के बहुत ही गहरा चैप्टर लिखा है शिव महापुराण में अंधकासुर का. अंधकासुर के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में. आज का मैसेज इतना ही है कि आंखें खोलने का समय आ चुका है, देखने का समय आ चुका है, जागने का समय आ चुका है. I want you healthy. I want you to have mental peace. It is your right. हमारी है ना fundamental rights and duties. It is a fundamental right for a human being to be happy. And if it's not, in certain countries it should be. It should be. हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सोसाइटी के बताए हुए नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं, हम अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए. और अगर इतना सब कुछ करते हैं तो खुशी तो मिलनी चाहिए ना, आज ही ना चाहिए. और अगर खुशी नहीं मिली तो शायद अब कुछ और करने का समय आ चुका है. शायद हार्डवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, हार्डवेयर पे काम करते. ये वीडियो खत्म करूंगा एक किस्से से. मैं और मेरे गुरु एक बार ऋषिकेश जा रहे थे दिल्ली से, और दिसंबर का महीना था, कड़ाकेदार ठंड थी, और गाड़ी चल रही है, मैं चला रहा हूं, और मेरे गुरु मेरे बगल में बैठे हैं. फोर्ड एंडेवर
गाड़ी थी, मेरी प्यारी फोर्ड एंडेवर, और बहुत सारी ओस जमी हुई है कांच के ऊपर. There was a lot of condensation on the glasses. I couldn't see anything. And I understood कि दिसंबर का महीना है, बहुत सारी फॉग होगी, तो गाड़ी तेज तो चला नहीं सकते, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब धुंधला था, सारी कंडेंसेशन थी ग्लासेस के ऊपर, और मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रहा हूँ 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, डर डर के, और मेरे गुरु ध्यान कर रहे हैं. 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा, बाहर देखा, मुझे देखा, बाहर देखा, और फिर खिड़की खोली. और जब खिड़की खोली तो देखा बाहर मौसम was absolutely clear. मौसम बिल्कुल साफ था. दरअसल हम दोनों इतनी गहरी सांसें ले रहे थे गाड़ी के अंदर, शीशे बंद करके, कि हम दोनों की सांस की वजह से the condensation was on the glasses, not because there was fog outside, but me because of my logic thought, दिसंबर है, धुंध तो होगी, तो धुंधी है. मैंने कभी खिड़की खोलने का सोचा ही नहीं, और मेरे गुरु ने मुस्कुराया, खिड़की खोली, और मैंने कहा ओहो, और हम दोनों बहुत हंसे. पर खैर अच्छा है, क्योंकि फिर चीतल आया और हमने खूब अच्छे से भोजन किया, और हम अपने रास्ते में आगे रवाना हो गए. मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, तुम डर डर के अपनी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें लग रहा है बहुत धुंध है, क्योंकि तुमने पढ़ा है, तुम्हारा लॉजिक है, और अब गुरु आ रहा है, खिड़की खोल ले. जब खिड़की खुलेगी तुम भी मुस्कुराना, गुरु भी मुस्कुराएगा. होती हैं गलतियां, लेकिन गलतियों को पकड़ के चलना जरूरी नहीं, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है. You have the right to grow and evolve. You deserve to grow and evolve. You deserve to let go of the past pain and mistakes. You don't need to carry that in your mind. And if you are carrying that, then you deserve to be happy. You deserve to let go. And that's why these 2 months, जैसा हमने योगा ऑफ इमॉर्टल्स में शरीर पे काम किया था ना, अब अपने मन पे काम करेंगे, गहरा काम करेंगे, खूब शक्तिशाली काम करेंगे. और क्योंकि केवल 2 महीने हैं तो थोड़ी इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे. और मैंने देखा कि हमारे साधकों की एपेटाइट बढ़ चुकी है. अभी कुछ हफ्तों पहले शिकागो में शिविर था, और पहले जब शिविर लेते थे तो एक समय बांध के शिविर लेते थे कि इतने से इतने बजे तक शिविर होगा. फिर हमें भी लगता था लोग थक जाएंगे, लोगों को भी लगता था वो थक जाएंगे. लेकिन जब शिकागो में शिविर था, मैंने कहा एक बार कोशिश करके देखते हैं. 10 घंटा मैंने लोगों को बिठा करके रखा, 10 घंटे तक उन्होंने गहरी साधना की, और मैंने देखा कि अगर मैं उनको 10 घंटा और बिठा देता वो बैठे रहते. जो शिव योगी हैं, आई थिंक they have evolved into another level. पूरी दुनिया मेडिटेशन की बात कर रही है, और वो बात कर रही है वो टुकर मैगी 2 मिनट वाली, कि 2 मिनट की साधना हो, 1 मिनट की साधना हो, आधे मिनट की साधना हो. तपस्वी तो शायद शिव योगी हैं जो 10 घंटा बैठकर भी अगले 10 घंटा बैठने के लिए तैयार हैं. तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो, और मैं भी खुश हूं that we will have a chance to work on ourselves. So bless you. The next video, let's discuss the psychology of Andhakasura. But this video, remember the message. Inside you is the possibility of great evolution. Once you bring it, then accept yourself. Inside you is God. Once you know it, then accept yourself. Then I have no worries. Then it will lead to great things. So bless you. And I invite all of you, especially the young people, especially the people who are suffering from stress and anxiety, and you've made it into such a big thing. It's not that big. It's not that big. Sadhana is bigger. Yoga of Immortals is bigger. Shiv Yoga is bigger, much bigger. If you hold on to this, anxiety will be
So if you are suffering from that, I invite you all, 2 months of your life, let's work on ourselves. And let's see what we have been hiding inside us. Let's meet the God that lives inside. Bless you. आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।